Hello, my students of grade 12 CBSE and ISCE board. Both, if you remember, we have already done the menstrual cycle in females under the topic human reproduction, right? For both the grades, for both the boards, it is enough. The videos are have enough material to prepare for the board examinations. अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए. अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से थरो रिवाइज करके लर्न करना चाहते हैं तो वीडियोस को देखना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़रूरी है, राइट? सो दैट इवन योर फ्रेंड्स कैन टेक दिस advantage, right? Before starting today's topic, after which is fertilization, right? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से दोनों गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन से पहले, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो सबसे ज़रूरी है कि यहाँ पे एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट it is known to everybody that a menstrual hygiene is a must process. Otherwise गर्ल्स को, फीमेल्स को बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ मदर, और इफ there are ladies listening to me, girls listening to me, or the brothers listening to me, then this should be taken care of, right? Now, what is the menstrual hygiene? It is during menstruation, keeping up the cleanliness and hygienic things, right? Number one, सबसे पहले there should be clean sanitary pads to be used, right? Clean sanitary pads to be used, and they should be changed after, even if you feel that they are dry, they are clean, and there are nothing to be done, but every 4 to 5 hours they should be changed, right? Right. Then the disposal of the sanitary napkins should be like, they should be first wrapped properly wrapped, right, with a paper, and then put it in the designated डस्टबिन एरियाज, राइट? डेजिग्नेटेड डस्टबिन्स उसके लिए होता है, राइट? मेडिकल वेस्ट या वेट वेस्ट, राइट? उसमें ज़रूर से ड्राई वेस्ट उसमें ज़रूर से, या हार्मफुल वेस्ट उसमें ज़रूर से डाल देना चाहिए, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट आफ्टर डूइंग ऑल दिस, hands should be properly washed with soap, right? So this is, a girl should maintain a hygiene, a lady should maintain a hygiene like this, right? After creating this much of awareness, which is my social responsibility also, and because we have done this concept, so this should be understood to us also. Now, coming to what happens when fertilization has to take place, right? तो हमने बात किया था कि स्पर्म बन चुका है, ओवम हैज ऑलरेडी बीन मेड. ओवम कौन से स्टेज पे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte has been made, right? And it is being released from males in a quantity of 20 to 30 million numbers. However, one ovum is released after in one menstrual cycle, right? तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनकी ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नाउ फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगेमी. ये हमने फ्लावर वाले, प्लांट्स वाले फर्टिलाइजेशन में भी बात करी थी, right? Now what will happen if fertilization takes place? The sperm, which has its 23 chromosomes, and the ovum, which has its 23 chromosomes, will form the zygote, which will have its diploid 46 chromosomes, right? राइट नाउ, तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है, दैट इज इंसेमिनेशन. दैट मीन्स सीमन in, right? So this is the copulatory act where semen, including the sperms,
is transferred to female body, right? Then what happens is the sperm, second step you can say here, second step is fertilization, right? The sperm comes in contact with zona pellucida of, right, ovum or the secondary oocyte, ठीक है? Ovum or the secondary oocyte, you can see this here, that sperm is wanting to get into the ovum, and these are the cells, this is the layer of zona pellucida. Can you see this sperm reaching zona pellucida, right? So zona pellucida के connect में वो आ जाता है, right? And it induces the changes in the membrane. तो जब zona pellucida में, so there are some changes happening in the membrane, ठीक है? तो changes happening in the membrane, one sperm can enter, और जैसे ही वो एंटर हो जाता है, these changes block the entry of additional sperms. तो क्योंकि एक ही ओवम है ना, तो एक ही स्पर्म को परमिशन मिलेगी अंदर जाने की, राइट? ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, करेक्ट? ये होता कैसे है कि जोना पेल्यूसिडा जो है ना, जोना पेल्यूसिडा जो है वो एक केमिकल रिलीज करती है, ठीक है? द नेम ऑफ द केमिकल इज फर्टिलाइजिन. So which after one entry of one sperm, it prohibits or just inhibits the entry of other sperms into the ovum. दूसरी तरफ एक्रोजोम, जो स्पर्म का हेड के ऊपर वो मुकुट जैसा था, ठीक है, एक्रोजोम के जो सिक्रीशंस होते हैं, राइट, दे हेल्प द स्पर्म, है ना, they help the sperm, अच्छा I should write it here, they help the sperm to enter the cytoplasm of ovum, to enter the cytoplasm of ovum. साथ साथ जब ये कार्यक्रम चल रहा है उतनी देर में ओवम, जो कि अभी सेकेंडरी oocyte था, राइट, रिमेंबर मैंने कहा भी था कि याद रखिएगा ये अभी सेकेंडरी oocyte स्टेज में, ठीक है, ये अपना मियोसिस कंप्लीट कर लेता है, वहां पे रुका हुआ था ना उसका मियोसिस, सो कंप्लीट्स इट्स मियोसिस डिवीजन, एंड out of which one small polar body is released and one haploid cell or a structure is released now, which is called ooted, which is actual real ovum ready to merge or ready to get mixed with or game, syngamy with fertilization with the sperm, ठीक है? तो एक्चुअली अगर हम कहें अगर कि फर्टिलाइजेशन होता किसका है भाई, तो स्पर्म का होता है और ऊटिड का होता है, एंड दिस मेक्स द जाइगोट, राइट? अब ये जाइगोट बनता कहाँ है, राइट? सो यानी कि इन ह्यूमन फीमेल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, करेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, one word, one mark answer, right? It is ampullary isthmic junction. I'm so sorry. Ampullary isthmic junction of fallopian tube. And you know that fallopian tube is the फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो फीमेल बॉडी में फिलोपियन ट्यूब के जो 3 हिस्से थे उनमें से एम्प्यूला और स्थमस का जो जंक्शन होता है वहां पे ये फर्टिलाइजेशन होता है, राइट? यहां तक कहानी समझ में आ गई? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज, सो द नेक्स्ट स्टेप विच विल हैपन इज जाइगोट बन चुका है, अब ये zygote will get into the next step which is called as cleavage, or you can call it as mitotic divisions, ठीक है?
Lot of mitotic divisions will happen in this zygote, right, which will form hollow, spherical, multicellular, multicellular developmental stages. Developmental stages. You can call them blastula, right? Or you can call them blastocysts. Correct? Okay, let's check it out. So can you see this diagram or here? Yes, this one. Yes, see. So sperms entered in the stage B. If you can see here, the sperms are entering. जब तक वो एंटर करके फर्टिलाइज करना शुरू कर चुके हैं, जाइगोट बन गया है, एंड देन दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2, देन 4, देन 8, देन 16 सेल स्टेजेस. आप ये यहाँ अंदर की तरफ भी देख सकते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस माइटोटिक डिवीजन द जाइगोट keeps moving towards, keeps moving towards the uterus, right? So A पे it is just an ovulation, ovary से ovulation हुआ A part. B part में sperms have come and fertilization happened, zygote has been formed, and then it is getting into multiple cells, right? Multiple cells. So now these are called as the developmental stages, right? These developmental stages are called as blastula. Okay, now what happens is, तो ये जब ये यूटेरस तक पहुंचने लगते हैं, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में, यहाँ तक स्टेजेस समझ में आए, राइट? आई शुड, ओके. नाउ ब्लास्टुला के अब इसमें क्या हो रहा है, 2, फिर 4, फिर 6, 8, फिर 16, फिर 32 सेल स्टेजेस. ये तक की तो 8 to 32 सेल स्टेजेस जो होती हैं, दैट इज डिफाइंड एज मॉर्यूला, राइट? सी हियर, you can see here morula. So 8 to 16 cell stages are called as morula. ठीक. अब इन मोरुला में क्या होता है, और ये मोरुला के स्टेज में ही ये यूट्रस में पहुंच चुका होता है, ठीक है. एंड दिस ट्रैवल टेक्स अप्रोक्सीमेटली 72 आवर्स टू रीच यूटरस, ठीक है. तो आपको ये समझ में है कि जाइगोट in its zygotic wala situation where it is one celled undergoes lot of mitotic divisions and creates approximately the matlab these many stages, 2, 4, 8, 16, 32 cell stages which are called as morula. और तब तक वो ट्रैवल भी करता रहता है, तो फिलोपियन ट्यूब से होते हुए वो यूट्रस तक तब तक पहुंच जाता है, ठीक है. all these daughter cells all these daughter cells can be called as blastomeres, right? अब होता क्या है, अब ये जो मॉड्यूला है ना, ये भी अभी डिवाइड करता रहेगा, कंटिन्यूस टू डिवाइड, राइट? और 2 लेयर बना लेगा. लेट अस चेक दिस इन द डायग्राम. सो व्हाट विल हैपन इज, इधर देखिए, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये 2 लेयर बना लेगा, ठीक है. द external layer, right? The external layer uh, has, right, this external layer is called has the cells blastomeres, ठीक है, with inner this trophoblast, right? And this, then they have their inner cell mass. So this layer with already blastomeres is called as trophoblast, and then these inner cell mass, right? इस स्टेज में अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाके और क्या होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब बना देता है, तो ब्लास्टोसिस्ट में आप क्या बोलोगे कि देयर इज एन आउटर सेल्यूलर स्टेज, ठीक है, आउटर सेल्यूलर स्टेज
right, which is called as trophoblast, which is made up of blastomeres, right? And then there is this inner cell mass, right? Inner cell mass, correct? Now, in this stage, it gets into the next stage of the fertilization, which is called as implantation. Now, what is implantation? So, implantation is the process of attachment of blastocyst on यूटेराइन एंडोमेट्रियम. तो अब क्या हुआ कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में, यानी जहां ट्रोफोब्लास्ट है, राइट, ये जी वाला पार्ट देखो, यहाँ पे ये जी वाला पार्ट जो है, राइट, दिस वन, राइट, इट गेट्स implanted into, can you see this blastocyst implantation H, इस स्ट्रक्चर में ये जाके यूटेराइन एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम remember the inner lining of the uterus which actually receives the zygote after fertilization so that it can be helped in growth. ठीक है, तो यहाँ जाके ये implantation हो जाती है. कैसे होती है? This trophoblast of the blastocyst, ठीक है, it penetrates uterine epithelial cells and establishes connection with uterine blood vessels. ठीक है, blood vessels. Now that means there is a successful implantation, right, and a successful implantation leads to pregnancy. पर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो स्टैब्लिशेस कनेक्शन है, ये कैसे बनाया, राइट? तो क्या होता है एक्चुअली, ट्रोफोब्लास्ट जैसे इम्प्लांटेशन होता है, ट्रोफोब्लास्ट में कोरियोनिक विलाय आ जाते हैं, राइट, विलाय मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं. आई थिंक डायग्राम में बहुत क्लियर दिख रहे हैं वो. इफ यू कैन सी, I'll show you somewhere. Oh, not in this diagram. Okay, so chorionic villi आ जाते हैं. Villi, you know, finger-like projections, right? And and what they do is, then they are surrounded by, क्योंकि ये तो implantation हो ही चुका है ना, तो surrounded by uterine tissues and blood vessels. चारों तरफ तो यूट्रस का ही सामान होगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स, राइट. तो अब होता क्या है, ये जो कोरियोनिक विलाय है, ये जो कोरियोनिक विलाय है और ये जो यूटेराइन टिश्यू है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज इंटरडिजिटेशन. मतलब फिंगर टू फिंगर टाइप्स विलाय जो है कोरियोनिक यूटेराइन टिश्यूज के साथ फिंगर टू फिंगर जुड़ जाती है, ठीक है. यू कैन सी इट हियर. सो सी दिस प्लेसेंटल विलाय एंड दिस यूटेराइन कैविटी, राइट. तो यहाँ पे ये जो विलाय है, this gets interdigited with the uterine tissues, right, uterine tissues. Now there is this new structure formed, right, and this structure, because of its combination interdigitation, is called as placenta, and the formation of this placenta is called as placentation. Now placenta is a very 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 important structure at this stage where implantation has happened, where pregnancy has been announced, right. तो अब ये placenta क्या करेंगे, what is the function
ऑफ प्लेसेंटा। इससे भी पहले एक बात ध्यान रखिए कि जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो से भी कनेक्टेड रहता है, नेचुरली रहना ही पड़ेगा, connected to embryo with the help of a cord like structure called as umbilical cord. ठीक है, right. Now placenta करता क्या है? Let us talk about the functions of placenta. Number one, all physiological functions, helps the fetus in its all physiological functions via maternal body, right? जैसे कि nutrition, respiration, excretion, right? All these happen due to due to this placenta because it is connecting the fetus to the mother's body, right? ठीक है, then it also secretes, it is also working as a endocrine gland, that means secreting lot of hormones, right? What hormones now it secretes? It secretes estrogen जो routine है, it secretes progesterone, rather I'll say it actually stimulates uh, okay, it secretes एक और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोगेस्टेरोन नॉर्मली भी प्लेसेंटा सिक्रीट करता रहता है, और ये जो हार्मोन है ना, ये कॉर्पस लूटियम को भी स्टिमुलेट करता रहता है कि ताकि वो भी और प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट करता रहे, मतलब ब्लड में प्रोगेस्टेरोन जो है वो हाई आ जाए। व्हाई? बिकॉज प्रेगनेंसी मेंटेनेंस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द यूट्रस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड एवरी पार्ट ऑफ द यूट्रस वांट्स टू हेल्प इट, राइट? तो कॉर्पस लूटियम भी प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो प्लेसेंटा से आ रहा है वो भी स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लूटियम को प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट करने के लिए, और प्लेसेंटा खुद भी प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट करता रहता है, ठीक है। एंड देन वन मोर हार्मोन दैट इट सिक्रीट्स इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन मतलब रिलेटेड टू मिल्क, मतलब न्यूट्रिशन। तो प्लेसेंटा में न्यूट्रिशन को भी मेंटेन करने के लिए फॉर द फीटस ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इज secreted by placenta, right? यहाँ तक कहानी समझ में आई, राइट? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। सो क्या हो गया, जाइगोट बन गया, मॉर्यूला बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद उसमें प्लेसेंटा भी बन गया, राइट? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया ना? अब जब प्लेसेंटा भी बन गया, अब एक बार देखते हैं कि वो जो ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, what is happening to it? It further changes, lot of transformations will keep happening here, further changes into gastrula, and this change is called as gastrulation. अब gastrula कब बोलते हैं? जब it is a structure with 3 layers of germ cells, 3 germ layers we can say, ठीक है? 3 germ layers, namely मैंने आपको बताया भी था, इंटरनल एंडोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म, और आउटसाइड वाला एक्टोडर्म, ठीक है, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस इज इन तीनों लेयर्स का आपको पता है स्ट्रक्चर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, दैट दे हेल्प इन और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स बनाएंगे, और सबका अपना एक फेट है, मतलब कौन क्या बनाएगा ये भी निर्धारित है ऑलरेडी। ठीक है, तो एक्टोडर्म बनाएगा एपिथीलियम या एपिडर्मिस, जो स्किन वाला टाइप, राइट। देन एपिडर्मल ग्लैंड्स, हेयर, ठीक है, आई के सारे पार्ट्स जैसे कि कंजक्टिवा, लेंस, राइट, आई लेंस, रेटिना, राइट। देन इनर ईयर, फोरगट, हाइंड गट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप मीजोडर्म की बात करो तो मीजोडर्म बेसिकली बनाएगा हमारे मसल्स, ठीक। देन डर्मिस, स्किन का दूसरा लेयर, बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, बहुत और सारी चीजें, किडनीज, यस ऑल्सो किडनीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किडनीज और किडनी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स। हाउएवर द एंडोडर्म will be making our midgut, bladder, the urinary bladder, lungs, liver, pancreas, right, and many more things. तो देख रहे हो आप, मतलब these are just the examples that I wanted to tell you, that they will be, all the three layers have responsibility of creating the organs during the time of development. Also जो blastocyst का inner cell mass होता है ना, उसमें there are some cells which have the to make potency to make any tissue, right? Remember उसको क्या बोलते हैं? Any tissue or organ. So those cells are called as stem cells. ठीक है, तो basically they also have stem cells with them. ठीक, यहां तक समझ में आया? ओके, एक चीज और दिखाती हूँ, सी इंटरेस्टिंग, कि अभी जेस्टेशन पीरियड चल रहा है क्योंकि इम्प्लांटेशन हो गया, सो बेबी इज डेवलपिंग। इफ यू सी दिस डायग्राम यू कैन सी द क्लियर डेवलपमेंट हैपनिंग एट वेरियस स्टेजेस, राइट? कैन यू सी them? Can you see them? Yeah. So embryo at 8 weeks, 8 weeks अप्रोक्सीमेटली 2 महीना, है ना? तो 2 महीने में आपको पता है लिम्ब्स बन जाते हैं पैडल लाइक, ठीक है, एल्बोज आ जाती हैं, सिंगल लेयर स्किन बन जाती है, राइट, नेजर, नाक की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बन चुकी होती है, ठीक है, यू कैन सी इट हियर। आफ्टर 12 वीक्स, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, पैंक्रियाज बनना शुरू हो जाता है, ग्लैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनना शुरू हो जाता है, लिम्ब्स बनने शुरू हो जाते हैं। कैन यू सी दिस? छोटे छोटे ये लिम्ब्स आने शुरू हो गए हैं, बड्स ऑफ द लिम्ब्स, राइट? तो बाय द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, 16 हफ्ते बाद, राइट, आपके नर्व फाइबर्स बनने शुरू हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर अप्रोक्सीमेटली आफ्टर द 5th मंथ, ये जो हमारा 24th वीक दिख रहा है, फर्स्ट मूवमेंट फीटस का नोटिस हो जाता है, हेयर, हेड पे थोड़ा थोड़ा हेयर आने लग जाता है, राइट। फिर पूरी बॉडी पे हेयर आ जाता है बाय 6th मंथ, राइट, एंड देन आईलिड्स सेपरेट होने लग जाती हैं, राइट, फॉर्मेशन ऑफ आई लैशेस बनना शुरू हो जाता है, राइट। 8th मंथ तक तो टेस्टीज डिसेंड हो जाती हैं नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब नेचुरली टुवर्ड्स द पेल्विक स्क्रोटल सैक में, राइट, एंड आफ्टर द 9th मंथ द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, 8 5 40, थोड़ा ऊपर जाके द फीटस इज fully fully developed, right, 36 40 9th मंथ, राइट, 40 वीक्स 9th मंथ में होते हैं, तो पूरा फुल्ली फीटस डेवलप हो चुका होता है। तो भैया अगर डेवलप हो गया है फुल्ली तो क्या होगा? फिर होगा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मीन्स एक्सपल्शन
of fully developed fetus from uterus through birth canal. ठीक है, right? तो after a gestation period of 9 months approximately, ठीक है, seeming like fetus has completely developed, strong contraction happens at uterus. ठीक है, this is initiated by, क्योंकि ऐसे तो होंगे नहीं, right? Initiated by न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. वो क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, मतलब नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का कॉम्बिनेशन चलता है और फिर ऐसी ऐसी चीजें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं. तो सबसे पहले जैसे ही फीटस डेवलप हुआ, राइट, सिग्नल्स ऑफ parturition will originate from fetus, क्योंकि वो फुल्ली डेवलप हो गया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है, फ्रॉम फीटस, राइट, एंड प्लेसेंटा ऑल्सो. ठीक है, उसकी वजह से यूटराइन मसल्स में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगे. ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज fetal ejection reflex. This term should be known to you, right? Fetal ejection reflex, correct? अब ये जो fetal ejection reflex है, ये ट्रिगर करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या डेवलप करने के लिए? ऑक्सीटोसिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन. ठीक ठीक, किसके? मैटरनल पिट्यूटरी, डेफिनेटली, राइट. अब ये जो ऑक्सीटोसिन आएगा, रादर लेट मी गो टू द प्रीवियस पेज. ये जो ऑक्सीटोसिन है, ये इन माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग बना देगा. ये फिर इसको ट्रिगर करेंगे, ये फिर स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, करेक्ट. तो देखिए गोल गोल साइकिल चलती रहती है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, मोर ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, मोर ऑक्सीटोसिन, स्ट्रॉन्गर, राइट. तो ये बार बार चलता रहता है टिल द टाइम this happens, till the time, right, this happens till the time the baby, now I am calling it baby because it is completely developed, is expelled out of the uterus. And along with the baby, the the placenta is also expelled out of the uterus. Right? Right? Yes. Yes. So sorry, there was a phone ringing. I had to disconnect it, and now we start. Yeah. So we were here that baby had placenta is expelled out. That means the birth has taken place. Tick. The other important stage is lactation. Tick. What happens? So by the time fertilization has happened, mammary glands differentiate. Some changes happen in them. Okay? And by the end of pregnancy, they start secreting, or let's say producing, milk. Okay? So this process is called as lactation, and this milk
is used to feed the newborn. And this is very important milk. Why? Because for initial few days, it has it has lot of antibodies in it. ठीक है? Due to which it creates strong immunity for the newborn. Right? That is why this initial milk for some days is called as colostrum, and the medical sciences say that this is very, very important for the baby to be fed on this milk. Right? This is all about the human reproduction. So we have come to an end, and I hope I have been able to make you understand this concept very clearly and nicely. If you have any questions, if you have any doubts, if you want to discuss any concept, any step out of it, please let me know in the comment box. और मुझे अच्छा लगेगा मैं आपके questions के आंसर दूं. और इस इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं या गलत नहीं करें, इसमें फुल मार्क्स आने की पूरी chances रहेंगे. Just watch the videos properly and revise your concept.